Hello students and welcome back again to our video tutorial. And today in this lecture we are going to discuss about different species of Plasmodium. In our previous lecture, in the first lecture of Sporozoan, I have told you that what are the characteristic features of Sporozoan with special emphasis of Plasmodium, and we have learned about the life cycle of Plasmodium in male as in human as well as in mosquito. So there are total of 60 species of Plasmodium which are known to infect different type of animals, and out of that 60 species, only 4 of them are able to infect human. This is what I have told you in the previous lecture as well. Plasmodium not only infect human, but it also causes infect in case of rats and in case of birds. So there are certain species of Plasmodium which I love to mention here, which is causing infection to rats, and that species which is causing infection to rat as well as birds. So the topic of today's lecture, it would be brief description about different species of Plasmodium. So I guess my marker is not working well. Let us show it. Different species of Plasmodium. And it is worth mentioning here that Plasmodium not only infect human, but Plasmodium also do infect rats as well as birds. So which Plasmodium infect rat? Plasmodium burgeri, that is the species of Plasmodium which causes infection in rat, and Plasmodium gallinacum causes infection in rat as well as birds, and let's call that chicken. So what I told you that about 60 species of Plasmodium are well known, and 4 of them are believed, or the 4 of them are proved that they cause infection in case of human. So let us discuss about those 4 species of Plasmodium which is causing infection, which is causing malaria in human, and what are their various features, how we can differentiate one species from other, or how we can differentiate type of disease, type of malaria which is caused by different 4 species. So let us make a chart here, and I believe this chart would be helpful to you. Here I am going to discuss about Plasmodium ovale. Then we will be discussing about the most common type of Plasmodium which is most widespread, Plasmodium, yes please, vivax, और इसी का लाइफ साइकिल हम लोगों ने पढ़ा था, तो जो भी फीचर्स पढ़े थे Plasmodium vivax के पढ़े थे. थर्ड एक ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है, एंड दैट इज लिमिटेड टू ट्रॉपिक एंड टेम्परेट रीजन ओनली, Plasmodium malari. और जो सबसे डेंजरस हम पढ़ेंगे, द वन विच इज मोस्ट डेडली, इज Plasmodium falciparum. So how different malaria has been caused by different species of Plasmodium, this is what we are going to learn today. Is that clear? सबसे पहले शुरू करते हैं Plasmodium ovale के इन्फेक्शन कहां पर होते हैं. तो Plasmodium ovale की इन्फेक्शन इतने वाइड स्प्रेड नहीं है, and there are certain part of Africa and America only, West Africa and South America, जहां पर इनकी इन्फेक्शन लिमिटेड होते हैं. तो Plasmodium ovale it is limited to South America and Western Africa. In Africa and America only the infections are found. जो Plasmodium ovale होता है बेटा, उससे जो मलेरिया, पहले मैं बता दूं उसका इंक्यूबेशन पीरियड. सो द इंक्यूबेशन पीरियड वो था जो टाइम ऑफ इंफेक्शन से लेकर फर्स्ट साइलेंट सिम्टम तक होता है. इन केस ऑफ Plasmodium ovale दैट इज 14 डेज. जो हमने वाइवेक्स का पढ़ा था, सिमिलर इंक्यूबेशन पीरियड इज देयर. देन थर्ड पॉइंट अबाउट Plasmodium ovale, इसकी जो इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी है, इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी, देखो जब भी हम पढ़ेंगे कि भाई पेशेंट को फीवर
शाइजोगोनी पेशेंट को फीवर कितने दिन बाद आता है? तो जब भी इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी कंप्लीट होगी, आरबीसी रप्चर कर जाएंगे और हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाएगा। तो अगर किसी की इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी 24 आवर्स में कंप्लीट हो गई है तो पर डे फीवर आ रहा होगा, अगर एक ही जनरेशन है। अगर किसी की 48 आवर्स में हो रही है तो और दूसरे दिन फीवर आएगा, अगर एक जनरेशन है। मैं वो भी केस बताऊंगा जब आपको 2 अलग अलग जनरेशन का इन्फेक्शन होगा या 3 अलग अलग जनरेशन का इन्फेक्शन होगा। तो फॉर एग्जांपल इट कुड बी ए केस कि बुखार तो मुझे 2 दिन के बाद आना था, पर मुझे पर डे बुखार आ रहा है, रीजन बीइंग अलग अलग जनरेशन में आरबीसी में। तो खैर इसकी इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी और प्लाज्मोडियम ओवेल इज कंप्लीटेड इन 48 आवर्स। तो लॉजिकली अगर बात करें, अगर सिंगल स्पीशीज इन्फेक्शन है, बस एक ही स्ट्रेन प्लाज्मोडियम की मेरे बॉडी के अंदर है, तो मुझे हर दूसरे दिन बुखार आना चाहिए। जो मलेरिया के, अच्छा इसके जो हीमोजोइन की बात अगर मैं बात करूं, हीमोजोइन का तो ध्यान दो आप ना, इसका गेमेटोसाइट का कंसेप्ट याद रखना। जो इसके गेमेटोसाइट्स होते हैं वो थोड़े से एनलार्ज कर देते हैं आरबीसी को। सो गेमेटोसाइट्स आर लिटिल बिट राउंडेड एंड एनलार्जेस इरिथ्रोसाइट। तो अगर आपके पास कोई ब्लड सैंपल आया है जिसको प्लाज्मोडियम ओवेल का इन्फेक्शन है, तो उसके आरबीसी, इन्फेक्टेड आरबीसी बाकी आरबीसी से बड़े होते हैं साइज में, और उनके अंदर क्या है, गेमेटोसाइट्स है। इज दैट क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्लाज्मोडियम ओवेल में आई विल लव टू मेंशन, जो ग्रेन्यूल्स प्लाज्मोडियम ओवेल के होते हैं उनको बोलते हैं जेम्स डॉट। जैसे वहां पे बताया था, स्कूफनर्स डॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक ग्रेन्यूल फाउंड इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ऐसे ही जो जेम्स डॉट है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी जेम्स डॉट मिलेंगे। तो प्लाज्मोडियम ओवेल का जो इन्फेक्शन है वो पर्टिकुलर एरिया में ही रेस्ट्रिक्टेड है। इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज होता है। इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी 48 आवर्स में आती है। माने फीवर हर 2 दिन के बाद आएगा। उसके जो गेमेटोसाइट होते हैं वो राउंडेड होते हैं और थोड़े साइज में बड़े होते हैं आरबीसी से। और जो डॉट आप डिटेक्ट करते हो, जो स्ट्रेनिंग के दौरान डॉट निकलते हैं, दैट इज जेम्स डॉट। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो जेम्स स्ट्रेन है मेरे पास, उस स्ट्रेन के साथ इसकी जो आरबीसी वो टेस्ट देती है, राइट। देन द लास्ट वन कि भाई ये कौन सा वाला मलेरिया कॉज करता है। तो जो प्लाज्मोडियम ओवेल है दैट कॉजेज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ मलेरिया, वी कॉल दैट माइल्ड टर्शियन। टर्शियन इसलिए वर्ड यूज किया है, 48 आवर्स का मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जांपल आज फीवर आया है, देन देयर वुड बी 24 आवर्स, देन देयर वुड बी 48 आवर्स, उसके बाद अब फीवर आएगा। तो दूसरे दिन और तीसरे दिन, मतलब जो फीवर होगा दैट हैड इज बीन रिपीटेड ऑन द थर्ड डे एक्चुअली आफ्टर 2 days. That's why we call it tertian, or let's call it malaria. So benign tertian malaria or oval malaria is caused by plasmodium ovale. So plasmodium ovale के कुछ features I'm going to repeat on a hurry. Limited to certain part of Africa and America. Incubation period is 14 days. Erythrocytic shaizogony is completed in 48 hours. Gametocytes are larger than, they enlarges the RBC. James dot are the characteristic dot, and that causes mild tertian malaria. Is that clear बच्चे? Now, जो सबसे कॉमन है that is वाइवेक्स। ये इन्फेक्शन आपको जितने भी ट्रॉपिक रीजन है और जितने भी टेम्परेट एरिया है वहां पर ये इन्फेक्शन मिलेगा। ऑल द ट्रॉपिक रीजन जहां पे टेम्परेचर नियर अबाउट 18 डिग्री के आसपास रहता है, 65 फ़ारेनहाइट, जैसे आपने पढ़ा होगा दैट हवाई आइलैंड इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिक रीजन। या फिर आपका टेम्परेचर जहां ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है, ज्यादा सर्दी में भी नहीं होती है, सैन फ्रांसिस्को और एटलांटा इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ टेम्परेचर। एनीवेज मैं उस ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा हूं, बट दैट इज वाइड स्प्रेड, दैट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड। आई विल बी मेंशनिंग, अगर आपसे पूछा जाता है मेरे मार्कर्स को क्या हो गया, which of the plasmodium is most widespread, answer should be plasmodium vivax, most widespread. I believe this would be visible. Then हम incubation period की बात करेंगे।
इंक्यूबेशन पीरियड इसमें भी 14 डेज ही होता है। इसकी भी जो एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी है दैट इज कंप्लीटेड इन 48 आवर्स। इसके केस में भी जो गैमेटोसाइट्स हैं वो आरबीसी को बड़ा बना देते हैं। तो गैमेटोसाइट increases or makes RBC very large, इसके जो हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स आर लाइट ब्राउन इन कलर। हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स लाइट ब्राउन इन कलर। इसमें हीमोजोइन ग्रेन्यूल इतने ज्यादा नहीं आते, इसलिए इसका माइल्ड टर्शियल मलेरिया हम वर्ड यूज करते हैं, माइल्ड फीवर होता है। हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स आर लाइट ब्राउन। ऑल राइट, जब इसके हम बात करेंगे डॉट्स की, कौन से डॉट्स पढ़े थे? स्कूफनस डॉट। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डॉट्स आर स्कूफनस डॉट, राइट। और कौन सा मलेरिया कॉज करता है? उस मलेरिया का नाम होता है बेनाइन टर्शियन मलेरिया। तो हर तीसरे दिन, हर 48 आवर्स के बाद फीवर आएगा और मैलिग्नेंट नहीं है। देखो बेनाइन का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर पार्ट में हीमोजोइन ग्रेन्यूल इन्फेक्ट करते हैं, और मैलिग्नेंट का मतलब जो पूरे बॉडी के अंदर चला जाएगा। वो भी मैं डिस्कशन करूंगा फैल्सीपैरम के केस में जब कंपेयर करेंगे। तो वायरस का जो केस होता है वो मोस्ट कॉमन है, वाइड स्प्रेड थ्रू द वर्ल्ड है। इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज होता है। एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी 48 आवर्स में ही कंप्लीट होती है। गैमेटोसाइट आरबीसी को बड़ा बना देते हैं। हीमोजोइन ग्रेन्यूल लाइट ब्राउन कलर के होंगे। स्कूफनस डॉट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी, और ये कॉज करता है बेनाइन टर्शियन मलेरिया। देन केस आता है प्लाज्मोडियम मलेरिया का। इट इज आल्सो नॉट वेरी वाइड स्प्रेड, और ये जनरली आपको मिलता है इन सम रेंज ऑफ टेम्परेट एंड ट्रॉपिक रीजन। लेट इट बी। इंक्यूबेशन पीरियड पे जब इसके आएंगे, इसका इंक्यूबेशन पीरियड सबसे लॉन्गेस्ट होता है 27 डेज टू 30 डेज। तो पहली चीज तो आप यही याद रख लेंगे। फिर इसकी जो एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी है, इट इज कंप्लीटेड फ्रॉम 48 आवर्स टू 72 आवर्स। तो हर तीसरे दिन बुखार ना आके हर चौथे दिन बुखार आने वाला है। इसकी जो गैमेटोसाइट्स होते हैं, दे आर स्मॉलर इन साइज, दे आर नॉट लार्जर इन साइज, स्मॉलर गैमेटोसाइट देन आरबीसी। तो इसमें आरबीसी का जो साइज है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, और बड़ा मुश्किल होता है ढूंढना इन्फेक्टेड आरबीसी को ड्यूरिंग द टेस्ट, क्योंकि गैमेटोसाइट बड़े हैं नहीं है और आरबीसी का साइज नहीं बढ़ा हुआ है। देन अगर इसके डॉट्स की बात करें तो मलेरिया के अंदर जो डॉट्स होती हैं, दीज आर नोन एज ज़ीमान्स डॉट। तो आरबीसी के अंदर अलग अलग डॉट से हम डिफर करेंगे। इसके अंदर जेम्स डॉट, जेम्स इज फॉर ओवेल, स्कूफनस इज फॉर वाइवेक्स एंड ज़ीमान्स इज फॉर मलेरिया। देन ये जो मलेरिया कॉज करता है बेटा, उसका नाम होता है, क्योंकि उसमें हर 4th डे पर आ रहा है फीवर, उसको बोलते हैं क्वार्टियन मलेरिया। तो बेनाइन क्वार्टियन मलेरिया इज कॉज्ड ड्यू टू प्लाज्मोडियम मलेरी, fever every 4th day, fever every 3rd day after 48 hours, vivax and oval. This is very mild, this is benign. Is that clear? Next, फिर आता सबसे डेडली जो फैल्सीपैरम है। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में डेट इज कॉमनली फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, इन नॉर्थ ईस्ट एरिया। अगर ये पार्ट विजिबल नहीं है तो रिमेंबर दैट इज रिटन एज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड इज शॉर्टेस्ट, इट इज अबाउट लेट्स से 12 to 14 days only. Okay, coming on the incubation period of Plasmodium falciparum, there are different theories. कुछ तो कहते हैं Plasmodium falciparum का incubation period सिर्फ 10 दिन होता है, but आप याद रखें for the range of incubation period that is also about 12 to 14 days. Then इसकी जो एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी होती है that is completed in 24 to 48 hours, so simply called it 24 hours. Generally range होता है 24 to 48 hours, but call it 24 hours.
इसका जो गेमेटोसाइट है, बहुत करेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसके गेमेटोसाइट राउंडेड नहीं होते हैं, इसके गेमेटोसाइट मून शेप होते हैं, हाफ मून शेप, वी कॉल दैट क्रिसेंट शेप। तो गेमेटोसाइट इज क्रिसेंट शेप। इसके जो हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स होते हैं दे आर वेरी डार्क इन नेचर, दे आर डार्क ब्राउन। So dark brown hemozoin granules with crescent shaped gametocytes, that is a characteristic feature of Plasmodium falciparum. Moreover, which of the dots is the characteristic feature of Plasmodium falciparum? Answer is Maurer's dot. तो ये जो dots है, these are very important. Maurer's for falciparum, Siemens for Mallory, Schuffner's for Vivax, and last but not the least, James for ovale. Then ये जो कॉज करता है मलेरिया उसका नाम होता है बेटा मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। और इसके और सारे कई सारे नाम हैं। तो अब हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे अबाउट द टाइप ऑफ मलेरिया विच इज कॉज्ड बाय falciparum. If these things are completed or you are very clear to differentiate between the different species of Plasmodium, how they have been differently detected, what are their features and what type of malaria they causes. I am going to discuss little bit about Plasmodium falciparum as it is very deadly. Right? Okay. Before really starting Plasmodium falciparum, let me give you the concept of relapse of fever. What is the meaning of relapse of fever? कई बार क्या होता है कि आप बीमार हो जाते हैं और आपको बार बार बुखार आता रहता है जब तक आप कोई मेडिकेशन वगैरह नहीं लेते हैं। तो जनरली जो वर्ड रिलैप्स है वो यूज किया जाता है जब कोई सिम्टम रीअकर होता है। तो रीअकरिंग ऑफ रीअकरेंस ऑफ फीवर इज नोन एज रिलैप्स ऑफ फीवर। ये क्यों बताया जा रहा है आपको? क्योंकि जो 3 इन्फेक्शन होंगे, चाहे वो मलेरिया का है, ओवेल का है या फिर आपके पास वाइवैक्स का है, उसमें रिलैप्स ऑफ फीवर होता है। falciparum में रिलैप्स ऑफ फीवर नहीं होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर, देयर इज नो रिलैप्स ऑफ फीवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपको दूसरी बार बुखार नहीं आने वाला अगर आप मेडिकेशन वगैरह नहीं ले रहे हैं इनिशियली, तो आप इसमें जो डेथ 3rd डे हो जाती है। तो लेट अस टॉक अबाउट मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। अदर नेम ऑफ दैट फीवर इज आल्सो ब्रेन फीवर। व्हाई वी कॉल दैट ब्रेन फीवर? इसके अंदर जो गैमेटोसाइट, अगर मैं बात करूं रिंग शेप ट्रोफोजोइड की, रिंग शेप ट्रोफोजोइड यानी सिग्नल रिंग शेप स्ट्रक्चर की बात की थी हमने जब लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि भाई फेरेनोजोइड जो होता है वो स्टेज होता है जो जाके आरबीसी के अंदर जाएगा, और नॉर्मली एक फेरेनोजोइड आरबीसी के अंदर जाता है। इस फेरेनोजोइड में सिग्नल रिंग शेप आ जाएगी, बीच में वैक्यूल आ जाएगा, फिर ये अमीबॉइड हो जाएगा, उसके बाद मल्टीपल फिशन करेगा एंड ऑल द थिंग। इन केस ऑफ falciparum infection, in one RBC, more than one signet ring stage is present. More than one signet ring stage is present. तो ये इनके वैक्यूल्स होंगे। RBC का जो भी कुछ आपका कंटेंट होगा, that has been pushed toward one side. So let's say this is signet ring shape like this. You got my point? RBC के पास तो न्यूक्लियस नहीं होता, that is very clear ना? उसको देख लेना। आई गेस लास्ट टाइम हमने न्यूक्लियस यहाँ बना दिया, दैट वुड बी द न्यूक्लियस ऑफ मियोजोइड, नॉट आरबीसी। तो ब्रेन फीवर क्यों कहता है, आई वाज टेलिंग यू, इस इन्फेक्शन के अंदर falciparum के अंदर एक ही आरबीसी में 2 रिंग शेप ट्रोफोजोइड ग्रो करने शुरू कर देते हैं, और इसकी वजह से आरबीसी आपस में क्लम्प भी होनी शुरू हो जाती है। क्लम्पिंग का मतलब है टू गेट स्टिक विद वन अनदर। और क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी की वजह से ये जो ब्लड वेसल है ये ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। नॉर्मली तो ब्लड वेसल में आरबीसी दे यूज टू पाइल ओवर ईच अदर लाइक दिस, इसको बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। आरबीसी कीप ऑन पाइलिंग ओवर ईच अदर,
तो अगर आरबीसी कलम करना शुरू हो जाए तो ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल आ जाता है। अब जनरली ये कलम करता है इन दोज ब्लड वेसल व्हिच हैज बीन गोइंग टू ब्रेन। तो इफ यू आर हैविंग ब्लड सप्लाई ब्लॉक टू द ब्रेन, यू बेटर नो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस। तो इसको क्यों कहते हैं ब्रेन फीवर? बिकॉज इट ब्लॉक्स द ब्लड वेसल। कौन सी ब्लड वेसल लेके जाती है ब्लड ब्रेन तक? आंसर वुड बी कैरोटिड ब्लड वेसल। वी कॉल दोस ब्लड वेसल्स एज कैरोटिड ब्लड वेसल। लेट्स से कैरोटिड आर्टरीज इज देयर, कैरोटिड वेन्स आर देयर। ये सर्कुलेशन में कभी पढ़ लेंगे, बट जब थोड़ा और हायर क्लासेस में जाएंगे। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जो फैल्सिपैरम है उसकी जो इन्फेक्टेड आरबीसीज हैं वो ब्रेन में जाने वाली जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट इज नोन एज brain fever, first case. Second case, other name of this fever, ये ज्यादा होता है during the session of rainy session। ये ज्यादा होता है during rainy session, इसलिए इसका एक नाम और होता है एस्टिवो ऑटमनल मलेरिया। तो कितने नाम पढ़ लिए आपने? वन ईयर डिस्कस्ड ब्रेन फीवर, सेकेंड ईयर डिस्कस्ड मैलिग्नेंट टर्शियल मलेरिया, थर्ड ईयर डिस्कस्ड एस्ट्रिवो ऑटर्नल मलेरिया, राइट। देन इस केस में आरबीसी डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाता है। जो आरबीसी को ब्रस्ट कर रही, क्योंकि इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी बहुत जल्दी होगा तो आरबीसी जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय होगा। आरबीसी जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय होगा तो खूब सारा हीम ब्लड से प्यूरिफाई होकर यूरिन में आना शुरू हो जाता है। तो पेशेंट बहुत ही डार्क यूरिन पास करना शुरू कर देता है। आरबीसी का नंबर कम हो तो क्या वर्ड यूज करते हैं? एनीमिया, और वी कॉल्ड इट पर्निशियस एनीमिया। तो एक ऐसा मलेरिया जिसमें पेशेंट एनीमिक हो जाता है, आंसर वुड बी फैल्सिपैरम। एक और इसको नाम देते हैं, वी आल्सो कॉल्ड इट पर्निशियस मलेरिया, पर्निशियस मलेरिया। And why we are calling that pernicious malaria? Due to mass destruction of RBC। आप ये भी याद रखेंगे, फैल्सिपैरम के केस में जनरली जो यूरिन है वो डार्कर हो जाता है। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर रिलैप्स नहीं होता है, देयर इज नो रिलैप्स ऑफ फीवर। तो पेशेंट को लेट्स से डे 1 क्या हुआ? इन्फेक्शन हुआ, और उसको डे 14, मैं इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज लेके चल रहा हूँ, सिम्टम आने शुरू हुए। तो लॉजिकली तो ये होना चाहिए डे 14 इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी कंप्लीट हुई, एक स्पीशीज की और बर्स्ट हुई, तो हीमोग्लोबिन ग्रेन्यूल वगैरह रिलीज हुए, और फिर अगले 24 टू 48 आवर्स के बाद फिर से आरबीसी की नेक्स्ट जनरेशन जो भी आरबीसी इन्फेक्टेड हुई है इन न्यूरोजोइड से, वो अगले 24 घंटे बाद बर्स्ट हो। तो अगर 24 घंटे के बाद बर्स्ट हो रहा है तो इसको बोलते हैं रिलैप्स ऑफ फीवर। पर इसमें रिलैप्स ऑफ फीवर नहीं होता है। ये जो हीमोग्लोबिन ग्रेन्यूल्स हैं ये इतना डेडली हो जाता है कि इट रिजल्ट इन डेथ। तो जनरली तीसरे दिन सिम्टम आने के दूसरे से तीसरे दिन डेथ हो जाती है। इस डेथ क्लियर? तो आपसे पूछा जाएगा हाईएस्ट डेथ किस में होता है? आंसर वुड बी प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम। ओके, एक और चीज आप सुन लें, दैट इज फॉर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम मेलाइनी। टाइप ऑफ फीवर की जब बात करते हैं, टाइप ऑफ फीवर केस, अगर मैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का केस की बात करूं, अगर दो जनरेशन दो सक्सेसिव डे में अपनी इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी कंप्लीट करती हैं, व्हाट आई एम राइटिंग हियर, टू जनरेशंस कंप्लीट देयर इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी ऑन टू सक्सेसिव डे। टू जनरेशन कंप्लीट्स इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी ऑन टू सक्सेसिव डे, इसको बोलते हैं डुप्लेक्स टर्शियन मलेरिया। डुप्लेक्स टर्शियन मलेरिया। तो डुप्लेक्स टर्शियन मलेरिया का मतलब क्या हुआ? आपको सक्सेसिव डे पे फीवर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डुप्लेक्स क्यों यूज किया है? दो अलग अलग जनरेशन है। टर्शियन क्यों यूज किया? कि हर तीसरे दिन बुखार आएगा। एक केस और होता है, वो होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया के केस में। प्लाज्मोडियम मलेरिया केस में अगर 3 जनरेशन है और हर सक्सेसिव डे पर अपना इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी कंप्लीट कर रही है, तो 3 सक्सेसिव डेज ऐसे हो जाएंगे
जब इथोसाइटिक शाइज़ोगोनी कंप्लीट हो रही होगी तो रोज ही बुखार आता रहेगा, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे क्वाड्रन ट्रिप्लेक्स मलेरिया। तो अगर कभी ये वर्ड यूज करें आप, कहीं ये वर्ड मिल जाए आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुप्लेक्स मलेरिया एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिप्लेक्स मलेरिया, आप याद रखना डुप्लेक्स मलेरिया का मतलब 2 अलग अलग जनरेशन है और ट्रिप्लेक्स मलेरिया का मतलब 3 अलग अलग जनरेशन है। कई बार बैड लक होता है, आपको ना कई सारे अलग अलग स्पीशीज ने इन्फेक्ट कर दिया, आपको मलेरिया ने भी इन्फेक्ट कर दिया, ओवेल ने इन्फेक्ट कर दिया, फैल्सीपैरम ने भी इन्फेक्ट कर दिया, खुदा ना करे ऐसा हो, और आपको लेट से वाइवेक्स ने भी इन्फेक्ट कर देता है। तो जो मिक्स इन्फेक्शन है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्वाइटोडियन मलेरिया, क्वाइटोडियन मलेरिया। तो व्हाट इज क्वाइटोडियन मलेरिया? इट इज अ टर्म फॉर मिक्स्ड इन्फेक्शन। क्वाइटोडियन मलेरिया is a term for mixed infection. Quotidian, it is quotidian malaria। तो बच्चे ये हो गया अबाउट डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। इज दैट क्लियर? आपको क्या याद रखना है, आपको ना उनका प्लीज इंक्यूबेशन पीरियड याद रख लेना, शाइज़ोगोनी कितने दिन में किसकी कंप्लीट हो रही है वो याद रख लेना, और कौन से डॉट्स किसको डिटेक्ट करने में किसके डिटेक्शन में कौन सी डॉट यूज होती है या किसके डिटेक्शन में कौन सी डॉट हेल्पफुल होती है वो याद कर लेना। ये 3 चीजों पे क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। तो दैट इज अबाउट डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट अस डिस्कस लिटिल बिट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। यस, कंट्रोल ऑफ मलेरिया, ट्रीटमेंट कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे। तो जब कंट्रोल ऑफ मलेरिया की बात करते हैं, कंट्रोल ऑफ मलेरिया ये तो आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ते आते हैं कि कंट्रोल ऑफ मलेरिया में सबसे पहले तो ये है कि आप डीडीटी स्प्रे कराएं। डीडीटी स्प्रे के अंदर जितने भी आपके आसपास वाटर फील्ड एरियाज हैं, जितने भी बिग्स हैं, उनको डीडीटी से स्प्रे कर दें। डीडीटी स्टैंड फॉर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो क्या तो भाई आपके पास एक डीडीटी का स्प्रे हो जाए, दैट इज गुड फॉर कंट्रोल। सेकंड, आपके पास कुछ लार्वासाइडल प्लांट होते हैं, लार्वासाइडल प्लांट एंड एनिमल, उनको आप यूज कर सकते हैं। देखो जो भी मॉस्किटोज होंगे, जो लार्वास हैं वो ज्यादा परेशान करने वाले हैं। आपको बताया था फ्रेशली मॉल्टेड का कंसेप्ट क्या होता है। तो फ्रेशली मॉल्टेड ही जाके एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में लेके जाएगा। तो अगर आपके आसपास कहीं पानी भरा हुआ है और आप वहां पर कुछ ऐसे प्लांट वगैरह ग्रो कर लेते हैं या ऐसे एनिमल वगैरह रियर कर लेते हैं जो लार्वा ऑफ मॉस्किटो पे फीड करते हैं, तो बहुत हद तक आप मलेरिया कंट्रोल कर लेंगे। एक इंसेक्टिसाइडल और इंसेक्टिवोर्स प्लांट होता है यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया इज ए इंसेक्टिवोर प्लांट। तो दैट इज हेल्पफुल। उसके बाद आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे होंगे अबाउट द फिश गंबूशिया, जो आपसे पूछा जाएगा आई होप। देन देयर अदर फिशेस लाइक मिनोज आर देयर, ट्रॉट्स आर देयर। दीज आर द वन विच आर लार्वासाइडल फिशेस। लार्वासाइडल, देखो जब भी कहीं वर्ड साइड यूज हो, साइड का मतलब होता है टू किल। If you are killing yourself, what do you call that? Suicide, right? If you are killing a fetus, what do we call that? Feticide. If you are killing a larva, what do we call that? Larvicide. तो ये वो फिशेज है जो लार्वासाइडल होती है। ठीक है बेटा। देन आपके पास और क्या है, आप खूब सारे नेट्स वगैरह यूज करें, मॉस्किटो नेट जो आता है, मॉस्किटो रिपेलेंट एंड ऑल द थिंग। देन जब मेडिकेशन की बात आती है, विच आर द मोस्ट कॉमन मेडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, क्विनीन, oldest and the most potent medicine against malaria, anti-malarial drug. It has been extracted from the bark of which tree? Cinchona tree. Bark of Cinchona tree. ठीक है, इसके बारे में खूब हिस्ट्री है।
एक्चुअली मलेरिया आपको डिटेल में पढ़ना है इन योर क्लास 12। तो जब क्लास 12 में आप आएंगे तो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द हिस्ट्री ऑफ चिंचोना ट्री एक्चुअली, कि कैसे कैसे ये पेरू से, वेस्ट इंडीज से, इंडिया से, चाइना से कैसे कैसे ये रोटेट होता चला गया। ठीक है, तो ये जो मैंने नाम लिए हैं वहां पर इसको ग्रो किया जाता है आज भी। इट इज फाउंड इन वेस्ट इंडीज, इट इज फाउंड इन पेरू, इट इज फाउंड इन चाइना एंड इट इज फाउंड इन इंडिया। देन there are certain derivatives of this drug quinine, like अभी वो चल रहा था ना आपका, like इंडिया से अमेरिका कुछ मांग रहा था। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट ड्रग? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन। अब देखो ये एंटी मलेरियन ड्रग है, बट इट इज बिलीव्ड टू बी एंटीवायरल एज वेल एंड इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट कोरोना। So certain anti-malarial drugs like chloroquine and that quinine, they have been tested to treat the patient of corona. I am not going in detail. One is, I guess this green would not be visible. Primidine. These are certain drugs which have been used for the treatment of malaria. So this is about the control of malaria. And last, we have to discuss about the history of malaria, that which scientist has been involved in recognizing that malaria is caused by this plasmodium and how the life cycle goes on. देखो मलेरिया का अर्लियर डेज में जो नाम रखा गया था, मलेरिया को माना जाता था बैड एयर। जो लेक्चर के शुरू में बताया था, मलेरिया माल स्टैंड फॉर बैड, area stand for there is an area which is having bad air. बहुत सारे लोग मलेरिया से मर रहे थे, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात है, आई गेस, नॉट गोइंग इन डिटेल, 1850-60s की बात है। बहुत सारे लोग वर्ल्ड वॉर से पहले बहुत सारे लोग मलेरिया से मर रहे थे, और यही माना जाता था कि भाई जहाँ पे भी मलेरिया से पेशेंट मर रहे हैं उस एरिया की हवा खराब हो गई, there is something bad in the air which is causing that disease. The first scientist who discovered, who actually find out that malaria is caused by plasmodium, the name was Charles Lavedon. So first, all heads off to this man, Charles Lavedon. In 1880s, he was the one who actually discovered, who actually find out that plasmodium is the causative agent of malaria. Plasmodium is causative agent. पर बुरी बात यह है कि उस वक्त इनकी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया था। मलेरिया एक ऐसी बीमारी जिसमें कई सारे लोगों को नोबेल प्राइज मिला, कई सारे लोगों को, और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1907 में आके, लाइक 27 years after his discovery। जब ये मोटे हो गए थे मरने के हाथ में, तब इसको नोबेल प्राइज दिया था। I'm not going in very detail. So Charles Lavedon is the first scientist who in 1880s discovered that malaria is caused by a parasite, by a protozoa, and that protozoa is plasmodium. ठीक है। Then there was another scientist, Dr. Lenky C, and he suspected that there is a relation between plasmodium and there is a relation between malaria. There is a relation between plasmodium and female anopheles. Suspected relationship between plasmodium and female anopheles, कि भाई जहां भी प्लाज्मोडियम के इन्फेक्शन होते हैं वहां पर ये जो मॉस्किटोज हैं वो बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं। देन 1897 के आसपास डॉक्टर रोनाल्ड रोस in 1897 he discovered or he confirmed this relationship. In 1897 Ronald Ross discovered or confirmed that relationship. He find out oocyte of plasmodium in stomach of female anopheles.
Later on, he was given a Nobel Prize for this discovery. So तीन साइंटिस्ट के नाम तो आपको याद रखे ही चलने हैं, डॉक्टर चार्ल्स लॉरेन, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस का जो रोल था वो याद रखेंगे। रोनाल्ड रॉस ने प्लाज्मोडियम के जो oocyte है वो डिस्कवर किए थे इन द स्टमक ऑफ फीमेल एनोफिलिस। एंड डॉक्टर लैंकिसी कि what was the role of Lengesi? He suspected that there is a relation between plasmodium and female anopheles. Right? ये तीन नाम याद रखें, that would be enough. उसके बाद okay. So this is all about the different species of plasmodium. What you have to remember that which plasmodium causes which type of infection. Is that clear? Okay. So this is all for the lecture. This is all for that lecture of plasmodium or sporozoans. Here, one more thing. I told you about certain sporozoans. उनके example वगैरह मैं पहले Okay, students. So let us now discuss certain more examples of sporozoans which we have earlier discussed. I told you about one example which we call Emaira. Remember? Emaira. There are two species of Emaira which is commonly found. One is Emaira mitis. Emaira mitis. And second is Emaira tenella. Emaira tenella. See, both species are believed to infect bird. This is very common in the infection. The common site of infection is ileum of intestine, and tenella common site of infection is cecum of intestine. So that is commonly cause infection in birds. Let's call that chicken. And the infection which is caused by Emaira is called as coccidiosis. So coccidiosis is a kind of bloody diarrhea. A lot of blood is lost. Lot of internal bleeding is there. That is caused due to Emaira. Right? Second example which we have already discussed was monocystis. Monocystis, remember monogenetic होता है. This is also monogenetic. और monocystis के बारे में याद रखेंगे कि that is found in the seminal vesicle of earthworm. See, monocystis vesiculomic epithelium cell पे भी मिलता है, but it is more commonly found in seminal vesicle of earthworm. And remember, it do not cause infertility in earthworm. ठीक है. Third, एक एग्जांपल बताया था आपको मैंने. One was Babesia. और जो बेबीसिया होता है that is generally causing babesiosis, a protozoal infection in cattle. We call that cattle fever, or other name is red fever. So cattle fever or red cattle fever is caused due to Babesia infection. So there are certain more examples. One is Emaira, second is monocystis, third is Babesia, fourth, last but not the least, there is one more which we call Nosema. Nosema is again a sporozoan which causes pebrine disease in silkworm. Pebrine disease in silkworm. See, why we are not discussing these diseases in detail? Because we do not need to do that. तो जस्ट कॉजेटिव एजेंट याद रखने वो काफी है. तो नोसीमा कॉजेस पेब्राइन डिजीज इन सिल्कवर्म, बेबीसिया कॉजेस रेड फीवर और कैटल फीवर. और क्योंकि ये जो बेबीसिया होता है ये डाइजेनेटिक होता है बेटा, और ये जो टिक होता है इट्स अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, उसको कॉज करता है. तो टिक कैटल फीवर की जब बात करें, टिक फीवर की जो बात होती है दैट इज अदर नेम ऑफ बेबीसिया. तो बेबीसिया डाइजेनेटिक है, कैटल इज द प्राइमरी होस्ट, टिक और इंसेक्ट इज द सेकेंडरी होस्ट. एंड इट हैज बीन I will say it has been transmitted by the bite of tick. Monocystis monogenetic, Emaira monogenetic, and that Nosema is monogenetic. ठीक है बेटा. राइट. तो हिस्ट्री में किस किस का नाम याद रखना है? चार्ल्स लॉरेन,
सेकंड नेम वाज, यस प्लीज, कहां गए नाम, उड़ गए, चलो, लैंकिसी। थर्ड नेम वाज रोनाल्ड रॉस, और एक और नाम होता है जो मुझे भी याद आ रहा है, दैट इज डॉक्टर ग्रेसी। डॉक्टर ग्रेसी वाज द वन जिन्होंने लाइफ साइकिल पढ़ी थी फीमेल एनोफिलस के अंदर, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन फीमेल एनोफिलिस, इन फीमेल एनोफिलिस। तो आप ये चार नाम तो जरूर याद रखेंगे, डॉक्टर लाउडन, डॉक्टर लैंकेसी, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस एंड डॉक्टर ग्रेसी। क्या क्या काम किया था वो भी जरूर याद रखते चले जाएगा। फिर कुछ एग्जांपल्स। तो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर, वी हैव कंप्लीटेड स्पोरोजोन्स एंड आई बिलीव कि आप एग्जांपल्स अच्छे से याद रखेंगे। और आपसे अगर पूछा जाएगा तो देखो, जो आपको प्रोमिनेंट क्वेश्चन आएगा वो एग्जांपल से आएंगे। तो एक लिस्ट बना लेना अपनी नोटबुक में कि चार, हमने कितने एग्जांपल पढ़े। हमने पहले पढ़ा प्लाज्मोडियम, दूसरा एग्जांपल पढ़ा मोनोसिस्टिस, तीसरा एग्जांपल पढ़ा बेबिसिया, चौथा एग्जांपल पढ़ा इमायरा एंड पांचवा एग्जांपल नोसिमा। कौन कौन से डिजीज करता है ये जरूरी, ठीक है बेटा। एंड आई होप अगर डाउट्स वगैरह है तो यू कैन पोस्ट मी माय नंबर, देयर नो इश्यूज, राइट। This is all for today. This is all for sporozoans. Thank you. Have a good day.